Okay, Assalamualaikum everyone. We are live. ये मैं हमेशा बोलती हूँ मतलब of course we are live. I don't know why do I say this, but anyways we are live, and today's session is going to be the last and the fifth session for the topic we were doing it on our page was the emotional and physical maltreatment in children. So हम लोग ने अब तक हर aspect से बात की है about the maltreatment. We talked about why the abuse is it's not just sexual abuse. It's emotional. It's verbal. Every and neglect we gave the I think all my panelists have talked about it from all different perspectives. Amara talked about from a family point of view that how as a family we need to be careful about it and how can we cater that. And then Amna talked about from a developmental point of view. Sukaina talked about from an educational point of view. Zainab talked as a speech therapist that why and how abuse can affect the development of speech and language. And now today, because we have talked about the all aspects, and we had a session with the lawyer also from getting the information that how our government and laws are helping our children if they get victimized. So today's session is kind of different because we are not just going to talk about. We will talk about abuse, but Faria, she's an art therapist and she's an amazing art therapist. She is going to talk about how art therapy can help children who have been victimized and how art therapy can help our children in expression, because I believe we tend to, and especially in psychology field, we tend to take art therapy very lightly. I don't know why. It's very effective. People think it's not much effective. I have tried it for myself, and the way uh, unconscious mind portrays through art, it's amazing. And I believe that even before a child talk, he sings. Before a child write, he draws. And whenever a child starts standing up, he wants to dance. So I think art is a very fundamental way to express emotions. And to be honest, for me, art therapy is an opportunity to process life. And I think it's very easier way, safer way, because जो हमारी एक हमारे कल्चर में सबसे बड़ा इशू है कि हाउ डू वी कन्वे such sensitive topics to our children and how can we ask them. I think this is a platform you can use without being any talking about any threatening topic or any topic that you are not comfortable, and the child will express, and then he or she is going to express the actual truth. So let me add Faria on the screen, and we are going to talk about how art therapy can help our children. Assalamualaikum Assalamu Faria. alaikum Tuba. Wa alaikum salam. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. How are you? I'm fine Tuba. Okay. Alhamdulillah. So Yeah. Faria, जैसे कि मैंने हमेशा मतलब you people do know about who you are, but थोड़ा सा अपने आप को introduce कर दो. Okay. Tuba, actually I am a remedial teacher, ठीक है, and a child psychologist. तो remedial teaching के थ्रू ही और मैंने आर्ट थेरेपी को सीखा, सही है, इसलिए कि एक्चुअली आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो ना, तो मुझे शुरू से कलर्स का और जो है ना क्रिएटिविटी का इतना शौक था। तो व्हेन आई स्टार्टेड जो है ना रेमेडियल टीचिंग, तो वहां पर ये हुआ कि फिर एक होता है ना कि शौक होता है इंसान को कि ना आगे से आगे सीखे, आगे से आगे सीखना है। हालांकि मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 5 years अगो, ठीक है। तो वहां पे ना उस टाइम पे ऐसा था, आर्ट थेरेपी का कोई इतना कॉन्सेप्ट था ही नहीं स्टार्टिंग में, तो ठीक है। अब ये तो अभी आया है कि जो ना कोर्सेज इतने आ चुके हैं, ऑनलाइन होता है सब कुछ, तो ये होता है ना, अवेयर हुए हैं लोग। लेकिन उस टाइम पे तो कोई कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। फिर ये हुआ कि मैंने जो है ना सीखा, इंटरनेट खोला, रिसर्चेस की, तो मुझे समझ में आया कि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। आर्ट थेरेपी बेसिकली इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। और एक था एडवर्ड एडवर्ड एडमसन, वो ये लेकर आए थे आर्ट थेरेपी का कॉन्सेप्ट कि कलर्स के थ्रू जो है ना हम किस तरह से अपने इमोशंस
को और अपनी एंजाइटी को, ठीक है, स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उनका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में जो है ना अमेरिकन एसोसिएशन है एक, तो वो पूरी आर्ट थेरेपी की अमेरिकन एसोसिएशन है। ठीक है, आर्ट थेरेपी अमेरिकन एसोसिएशन है वो नाम से एक पूरा इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, यूएस में। वहां पर वो लोग आर्ट थेरेपी को लेके इतना अच्छा मतलब काम हो रहा है वहां पर। टूबा है ना, उन लोगों ने आर्ट थेरेपी को हर चीज के साथ रिलेट किया। ठीक है, रिसर्च के साथ रिलेट हुआ है वो हर हर एक होता है ना, हर फील्ड है जो है ना, साथ उन लोगों ने आर्ट थेरेपी को रिलेट किया हुआ है। सही है, तो उनका काम काफी अच्छा हुआ है। तो ना उधर से थोड़ा बहुत एक होता है ना रिसर्च करके फिर तो मैंने सीखा कि हाँ ये आर्ट थेरेपी इतनी हेल्पफुल हो सकती है हर एक के लिए। फिर सबसे पहले तो मैंने खुद है जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करना सीखा। फिर ऐसा था जो ना स्टूडेंट्स आते थे उनके ऊपर आर्ट थेरेपी आहिस्ता आहिस्ता की। ठीक है, फिर ये कि मैंने केसेस उठाए तो और मुझे पता चला कि हाँ ये जो ना आर्ट थेरेपी से हम स्टूडेंट्स को और इस तरह के जो अब्यूजिव जो इस तरह के जो होते हैं बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं, हम उनके साथ कितना अच्छा काम कर सकते हैं कि ये ट्रॉमा Yeah. को, स्ट्रेस को जो है ना रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए ये हेल्पफुल होता है बहुत ज्यादा Yeah. आर्ट थेरेपी। अच्छा, और फरिया, जैसे कि मैंने आई थिंक बिफोर आई जम्प इनटू द सेशन आई टॉक्ड टू एवरीबॉडी अबाउट दिस, बट व्हाट इज अब्यूज टू यू? व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन अब्यूज? तो एक्चुअली ऐसा होता है कि हर इंसान का ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव एक बहुत अलग होता है। कोई आपको कुछ और बोलेगा, कोई आपको कुछ और बोलेगा। मेरे हिसाब से अब्यूज इज अ ट्रॉमा। ठीक है, अब्यूज वो जो है आपको खुद को, आपकी पूरी पर्सोना को जो है ना बिल्कुल स्कैटर्ड करके रख देता है। ठीक है, और समटाइम्स Yeah. इस तरह होता है कि कुछ ऐसे वो लोग होते हैं कि जो आपको सपोर्ट ही नहीं करते, खास तौर पे आपके खुद के जो खून के रिश्ते। सबसे पहले तो ठीक है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी इतनी इज्जत है, लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो एक ये चीज ना कि लोग क्या सोचेंगे, ये जो ना अभी तक होती आ रही है कि मतलब 2020 है, हम लोग 2020 जो ना है, हम समझते हैं हर एक को इतना पता होता है, हर एक को इतनी अवेयरनेस है। लेकिन टू आई थिंक सो कि पाकिस्तान में ना अवेयरनेस नहीं है ऑनेस्टली। पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज की या किसी ही तरह के अब्यूज की जो है ना अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर। हेलो? जी जी, आवाज आ रही है। यस यस, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। तभी तो हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है सिर्फ एक चीज के बिल्कुल लिए, जो कि एक बहुत कॉमनैलिटी होनी चाहिए इन आवर सोसाइटी, दैट our people are educated and aware about it, but unfortunately there is none effort. I think बहुत कम effort है जितनी हो रही है। हो रही um, है। हो रही है, बट अगेन जैसे हम उसका पार्ट हैं, वी आर, इतने हाँ लोगों में हम भी हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, बट अगेन, हेलो, या, जी जी, तो मुझे आवाज आ रही फरिया, आई, yeah, so I'll just start with, okay, how can art therapy help with to the children or even adults who have been है। victimized due to abuse? ठीक है, एक्चुअली तो वो आर्ट थेरेपी जो है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके खौफ एक होता है जो ना अंदर होता है उसको, आपकी एंजाइटी। हम लोग आर्ट थेरेपी को ज्यादातर एंजाइटी के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एंजाइटी को ही आर्ट थेरेपी ना रिड्यूस करती है। ठीक है, अगर ऐसा है कि आपने देखा होगा तो हर कोई एंजाइटी को लेकर आता है। ठीक है, डिप्रेशन और भी जो है
लेकिन एंजाइटी हमारी यहाँ खासतौर पे पाकिस्तान में, कराची में, यहाँ पर एंजाइटी सबसे ज्यादा है, मोस्टली परसेंटेज पर एंजाइटी है। तो बेसिकली आर्ट थेरेपी जो है वो जो ना एंजाइटी को ही रिड्यूस करती है, हमारे इमोशंस को रिलीज करती है, हमारे वो सारे इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल अब हम ये सोचते हैं कोई अब्यूज हुआ है, ठीक है, तो उसका जो ट्रॉमा होता है, उसका जो खौफ होता है, ठीक है, तो वो खौफ का जो इमोशंस होता है तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर रह जाता है, यहाँ भी रह जाता है और यहाँ भी रह जाता है। तो उस चीज को हम कलर्स के थ्रू निकालते हैं, और कलर्स वो कोई से भी हो सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये भी हो सकते हैं, पेंसिल वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, पोस्टर्स हो सकते हैं, प्ले हो सकता है, ठीक है, हाथों के लिए स्लाइम हो सकता है, वो कुछ हो सकता है, कोई ऐसा कि वो जिससे हम आर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट थेरेपी की टेक्निक खाली कलरिंग से नहीं होती, आर्ट थेरेपी की टेक्निक और भी जो है टूल्स होते हैं हमारी, उससे भी हो सकती है। अब एक टूल हमारे पास ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक आता है वो जिसको हाथ में लेके वो जिससे छोटा छोटा चीजें और इस तरह से कुछ बनाते हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो वो भी हम लोग इस तरह के बच्चों के लिए और जो है ना इस्तेमाल करते हैं कि ताकि अब्यूज के लिए और इस तरह के लिए, ट्रॉमा के लिए, तो वो जो हाथों की जो रिलैक्सेशन होती है ना, वो यहाँ जाती है। ये हाथों की रिलैक्सेशन इस चीज को कनेक्ट देखो ना, करती है। अगर हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन की बात करें, तो इवन फॉर इंस्टेंस हम क्लास में हैं और हम पढ़ रहे हैं और हम एकदम एंशियस हैं, हम क्लिपर करने लगते हैं, पेन को ऐसे ऐसे क्लिप करने लगते हैं, पैर हिलाने लगते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑल आवर सेंसरी, वी आर एंशियस, दिस इज व्हाट थ्रू व्हिच वी आर कामिंग आवरसेल्व्स डाउन। सो यस, जैसे कि तुमने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो आपका स्ट्रेस रिलीव करता है। और ना पता है, एंजाइटी को मैंने इसलिए इतना हाईलाइट किया है क्योंकि आर्ट थेरेपी होती ही एंजाइटी के लिए यूज है, ठीक है, ये होती है एंजाइटी के लिए। और मैंने खुद भी कहा था आपसे अभी कि हमारे पाकिस्तान में एंजाइटी सबसे ज्यादा परसेंट पर है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ना डिप्रेशन और भी वो जितने सारे हैं, उसके अलावा एंजाइटी हमारी यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यहाँ है, हाई लेवल पे, हर चीज में। बिल्कुल। सो फरिया, कोई ऐसी टेक्निक्स, बिकॉज आई वांट के तुम जो थोड़ी कुछ ऐसी टेक्निक्स बताओ जो कि मदर्स या पेरेंट्स अगर कुछ ऐसा फील करते हो और बच्चा जो है वो नहीं बता पा रहा हो, तो दे कैन ट्राई इट एट होम एंड द चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस ऑन अ सेफर पोर्टल, ऑन अ सेफर मीडियम। ठीक है, टेक्निक्स तो मेरे पास है, मैं टेक्निक्स भी आपको बता दूंगी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि ना टेक्निक्स हमारी जो है, सबसे पहले जो पहली टेक्निक आती है, मैं लिखी हुई है, अगर ये दिख रही है, कनेक्टिंग विद द बॉडी, सबसे पहले कनेक्टिंग विद द बॉडी। हाँ, पहली टेक्निक हमारी कि हम अपनी इस चीज को अपनी बॉडी से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कनेक्टिंग विद द बॉडी का ये है कि अगर किसी बच्चे के साथ हुआ है अब्यूज, अब देखो मैं जो है ना इसके लिए आपको एक ना रियल एग्जांपल इस तरह की बता देती हूँ तूबा, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक स्टूडेंट थी। अच्छा, बेसिकली ना हैरत की बात ये कि ये स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा होता है, स्कूल वाले बच्चे, ठीक है, मोस्टली ये मैंने देखा है, स्कूल वाले बच्चों के साथ सबसे ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स के साथ, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो एक बच्ची आई थी, शी इज अराउंड 13 years old, ठीक है, और वो आई थी और उसको ना अब्यूज किया गया था, 3 लोगों ने, 3 स्वीपर्स थे, ठीक है, स्कूल में ही थे उनके, उसको अब्यूज किया था, ठीक है। और वो जब आई थी वहां पर, तो अच्छा इस तरह होता है कि पहला हमारा जो सेशन होता है ना, तो उसमें ये होता है कि वो लोग जो ना ठीक से ना इंटरेक्ट करते हैं नहीं, इस तरह के जो होते हैं ना अब्यूजर्स, वो जो होते हैं, मतलब वो इस तरह से जो है ना वो ना
करेक्ट कर ही नहीं सकते, कि मतलब वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में होते हैं, इतने ज्यादा, इतने हद तक कि वो जो है ना उनको खुद एक ना, आप हाथ लगाओ, टच से जो है ना बहुत मतलब वो चीज होती है, आप हाथ लगाओ वो उस पे भी इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। तो मेरे पास जो बच्ची आई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने जो है शुरू में ऐसा किया कि ना रैपो उसके साथ ठीक से मैंने वो किया, मतलब ठीक से अपना इंटरेक्शन उसके साथ पहले पूरा सेट किया। उसमें भी हम लोग को 5 सेशंस तो हमारे ऐसे ही हो गए थे कि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था ठीक से, वो ठीक से मुझसे बात नहीं करती। फिर छठे सेशन में उसको मैंने कहा कि अगर अच्छा, हम लोग कनेक्टिंग विद द बॉडी में क्या करते हैं, हम कनेक्टिंग विद द बॉडी में ये करते हैं कि हम उनको ना ऑलरेडी एक फिगर हम ऐसी बना के दे देते हैं कि ये, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्ची का नाम है XYZ, तो मैं ये इस तरह की फिगर उसको बना के वो दे दूंगी। अगर हमारी ऑडियंसेस को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, या ठीक थोड़ा है, सा, अगर हमारी ऑडियंसेस को दिख रहा है, अभी दिखा, या या ठीक है, ये ना इस तरह की एक ना फिगर होती है। फिर हम उससे पूछते हैं कि आप अपने हाथों में या यहाँ पे या यहाँ पे क्या चीजें ऐसी हैं कि जो अंदर हो रही हैं। अब देखो बच्चा ऐसा होता है कि हर कोई इंग्लिश तो समझता नहीं है, ठीक है, और हर कोई तो उनके साथ हमें इजी तरह से ना पूछना पड़ता है कि ना आपको इधर कुछ हो रहा है या इधर कुछ हो रहा है, तो आप हमें कलरिंग के थ्रू ना आप इवन हमें करिए बताओ। अगर उनको इंग्लिश भी आती है ना, सो दे डोंट हाँ, नो हाउ टू, दे डोंट हैव द हाउ टू लैंग्वेज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। हाँ सही बात है ये चीज। या तो फॉर एग्जाम्पल उसने सबसे पहले उठाया था रेड, ठीक है, रेड कलर उसने किया था यहाँ पे, ये हेड पे देखो यू, ये रेड कलर ओके, उसने ना हेड पे किया था, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा था कि मेरे हेड पे जो ना मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं रेड कलर करूंगी। मैंने कहा ठीक है कर लो रेड कलर। फिर उसके बाद उसने अपने हाथ पे, ये वाले हाथ पे, एक हाथ पे, दोनों हाथों पे बल्कि उसने इस तरह से कलर किया था कि ये ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मतलब फोल्ड हो जाते हैं हाथ मेरे, और फ्रीज हो हाथ जाते मेरे हैं। चलते नहीं है, फ्रीज हो जाते हैं। तो ये टेक्निक इसलिए, तो फिर उसने जो है ना आहिस्ता 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 करके कलर्स के थ्रू तो वो चीजें बताई थी कि मुझे यहाँ ये हो रहा And है, this is मुझे such इस a बॉडी brilliant पार्ट में। way to aware the यस, children about their body parts, कि how they react under stress and यस, यहाँ पे कैसा फील हो रहा होता है, तो वो बहुत अलर्ट हो जाते हैं इन दैट सिचुएशन। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। सही बात है बिल्कुल। तो ये जो है हमारा ये जो चीज है ना हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट होता है कि यहाँ ये हो रहा है। अच्छा एक चीज और ना, ग्रीन कलर अक्सर ऐसा होता है कि देखो हर एक के लिए कलर्स की भी अपनी कहानी होती है, कि उसके लिए कोई कलर का जो है ना कुछ और वो होगा, कोई कलर का कुछ और जो है ना वो मतलब होगा। अब उसने यहाँ पे ना साइड पे जो है उसने ग्रीन कलर किया था, और ग्रीन कलर मैं आपको बताती हूँ, मुझे अभी भी याद है, उसने बिल्कुल यूं करके किया था, लुक एट दिस, कि पूरा वो निकल गया था बाहर निकाल के बिल्कुल इस तरह से ना यूं करके। तो मैंने कहा कि आपने एक किया है, अब ये देखो, अब ये इधर से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है। तो उसने मुझे बोला इसलिए कि इधर तो मुझे तकलीफ होती है, ये तकलीफ वो जो था ना अल्फाज, वो जब उसने कहा ना तो शी वॉज क्राइंग कि मुझे यहाँ पे तकलीफ होती है। तो ये बहुत मतलब जो है क्या नाम है ना, और तो वो ये इसकी एक तकलीफ हम, इतनी ज्यादा होगी कि वाइल कलरिंग वो उसके बॉर्डर से बाहर चला गया हाँ कलर। बॉर्डर से बाहर तो चला इसका गया। मतलब अब है कि देखो, उसका पेन उसकी बेरिंग से ज्यादा है। होता है, बिल्कुल होता है। मैंने ना मोस्टली तो वह मैंने जो है ना अब्यूज के केसेस लिए हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में अब पता नहीं कि ये ना इससे के लोग क्या सोचे, लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि मोस्टली साइकोलॉजिस्ट भी जो है ना अब्यूज के केसेस उठाते ही नहीं है, वो नहीं लेते। इसलिए कि ये जो इस तरह के केसेस होते हैं ना, ये आपको ये इतने मतलब हसास होते हैं, इतने हसास होते हैं कि है ना एक
दफा आपने अगर खोल लिया उसको, तो आपको उसको हील करके दोबारा से उसको ठीक से स्टिचिंग करनी होती है। आप उसको ऐसे खुला हुआ नहीं छोड़ सकते। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है हमारे लिए भी और उनके लिए भी, ये पूरा प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक तो हमारी ये टेक्निक हो गई कनेक्टिंग विद द बॉडी, ठीक है। अब मेरा जो दिल कर सेकंड रहा है कि हमारी, ये मैं अभी मेरे लिए मेरे साथ कोई करेंगे। आई थिंक बिल्कुल आप अभी कर रहे हैं, there आप are अभी few मेरे things साथ भी that कर is सकती going हैं। on right now which has हाँ, अभी occupied my head so much कि I think आज मैं अपने सर को शायद बहुत कलर कर देती because there's so much going on. सो मच गोइंग ऑन, ट्रू दैट। अच्छा, दूसरी हमारी टेक्निक है एक्सप्लोडिंग Oof, I am so volcano excited of about this. emotions, Exploding the volcano of emotions. volcano of emotions, Brilliant. ये Go for it. Go for it. गो फॉर इट। ओके, ये जो हमारी टेक्निक है, इस टेक्निक में हमें पता होता है कि जो अब्यूजर जो है हमारे सामने, जो बच्चा है या बच्ची है, वो जो भी है, वो जो है अपने इमोशंस के साथ इतना इतना एक उतना इधर तक हो चुके इमोशंस, अब वो फट के बिल्कुल बाहर आने वाला है। तो हम उसको ये बात बोलते हैं कि ये बना हुआ होता है। ये मैं हमेशा बच्चों को जो है ना खुद से बना के देती हूँ, इसलिए कि उस टाइम पे जो ना उनकी हालत ऐसी होती है वो ठीक से उस चीज को कर नहीं सकते, तो वो सिर्फ अपने इमोशन को लिखते हैं वहां पर। अगर ऐसा है कि वो लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो लिखते हैं। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि मैंने उससे कहा कि ये एक Okay. Volcano. वॉल्केनो है, ठीक है, आपको इसके अंदर अपने इमोशंस रखने हैं, और कौन से आपके इमोशंस ऐसे हैं कि वो जो है ना आपके अंदर मतलब रह ही नहीं नहीं पा रह रहे, पा कि रहे। मतलब आपको ना, हाँ, यूं हो रहे हैं, बर्स्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने लिखा, फॉर एग्जाम्पल, उसने लिखा था बाकायदा, और ये मैं आपको रियल एग्जांपल बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने सेशन दिया, ठीक है, ये मैं आपको रियल एग्जांपल बता रही हूँ जो मैंने देखा, ठीक है। ये आपका वोल्केनो, अच्छा, राइटिंग पे मेरी जरा सा प्लीज, ऑडियंस से भी मैं कहूंगी कि प्लीज मेरी राइटिंग पे लिए तुम एक आर्टिस्ट हो, एक आर्टिस्ट और एक डॉक्टर की राइटिंग माफ है। हाँ, ट्रू दैट। तो इसीलिए अब मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर। तो इसमें लिखना होगा बच्चों को या कलर करना होगा? लिखना होगा, लिखना होगा, इसमें हम राइटिंग में देते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल उसने ये चीज लिखी, अगर ये दिख रहा है, अंधेरा आ रहा है, आई थिंक सो, नहीं नहीं सही है, तुम अगर बस ये पकड़, स्टिल रखो, स्टिल रखो। इट्स क्लियर। सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और येलिंग, हाइडिंग, एंड तीसरा नहीं दिख रहा, येलिंग, हाइडिंग, ड्रॉइंग, ठीक है, इस okay, so ड्रॉइंग the है कि emotions should be inside the volcano and यस, how you are, you know, बिहेविंग, वो आपके सिम्टम जो है, एक्शन, ठीक है, आपके रीजन जो है एक्शन वो और वो अंदर होना चीजें, चाहिए, द एटीट्यूड शुड बी लाइक द बर्ड। एक्शंस, तो आपके एक्शंस आपको निकालने हैं। तो वो चीज, और ये चीज उसने लिखी थी, एंड शी वाज लाइक कि मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं वो जब सोचती हूँ ना, और मैं रोती हूँ, और मैं ऐसा रोती हूँ कि मैं चीखती हूँ जोर जोर से, ठीक है। तो ये एक ये तरीका है कि कितनी साल इससे की हमें ये बच्ची थी समझ आती है। बढ़िया? व्हाट वाज द 13 एज? ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 13 ईयर्स ओल्ड। तो उसको इतनी समझ थी इन चीजों की, ठीक है, कि वो चीज, और उसने खुद ये मुझे कहा था कि ये जो चीज है ना, ये ऐसा लगता है कि ना अंदर से जो है ना मुझे तोड़ रही है, यूं 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 करके उसने कहा था कि ये ऐसा लगता है कि ये, और वो फिर खामोश हो गई। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तोड़ना, कि
अंदर से मतलब उसको तोड़ रही है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये आपके एक्शंस को भी खुद ही वो देखो उसने एक्शंस खुद ही लिख लिए पेपर पे। तो वो रियलाइज भी चीज तो करता है ना बच्चा when they are drawing हाँ it and so they are realizing रियलाइजिंग। on it. Sometimes for instance if जो मेरे साथ होता था when I was studying a little bit, मेरी इसमें स्पेशलाइजेशन तो नहीं है but all psychologists have to study a little bit about art therapy. So when I was studying it, I remember कोई direct सवाल करता था कि how are you feeling, we used to say okay I'm feeling fine, I'm feeling okay. और अगर कोई मुझे piece of paper पे draw करने को दे दे how I'm feeling, it was very different than what I said because I wasn't realizing the inner unconscious emotions going on. ये तो है, ये तो है तुबा, ये हम सबके साथ है। अब देखो हम खुद भी समटाइम्स ऐसा होता है, स्ट्रेस में होते हैं तो हम कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन ये जो अब्यूज जो बच्चे होते हैं, सोचो वो तो उस चीज से सफर कर रहे हैं। और मुझे इतना अक्सर ऐसा होता था कि पेरेंट्स आते थे और कहते थे है ना आप इसको ना रुलाती हैं, आप इसको रुलाती हैं। तो मैं उनको यही कहती थी कि वो एक होता ना रोना, मतलब वो निकल रहा है ना उसके अंदर से, वो जो है ना रोए। तो यहाँ बहुत डिस्करेज किया जाता है ना ये कॉन्सेप्ट, इवन इफ इवन ऑन समवन्स थेरेपिस्ट को, डेथ, इवन द फैमिली थेरेपिस्ट को को सब लोग बोल रहे होते हैं अगर आप किसी के फ्यूनरल पे जाएं, पीपल आर टेलिंग देम हाँ नहीं रो यू नो एंड यू नीड टू लेट देम एक्सप्रेस। हमारे हाँ यही एक्सप्रेशन को बात। इतना कंट्रोल किया जाता है कि फिर बच्चा रियलाइज ही नहीं कर पाता। तो ये टेक्निक इसीलिए है कि हम अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को, सबको जो है मतलब ये है ना निकाल दे बाहर ना, ठीक है निकालना। अच्छा अब देखो प्रिया, कुछ क्वेश्चंस हैं, डू यू वांट मी टू टेक विद द फ्लो और या एंड में? हाँ अभी भी हम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ही एक चाह रही हूँ, हाँ आप ले लो ले लो ले लो। एक क्वेश्चन है कि कैन यू शेयर सम टेक्निक्स फॉर अ चाइल्ड हु इज अनेबल टू रिलेट विद कलर्स, यानी कि बहुत ही छोटा बच्चा 1 और 2 इयर्स ओल्ड। ठीक है, अच्छा इसमें जो है अगर वो कलर्स के साथ वो जो है ना वो इतना उसको वो नहीं होता, तो आपसे ही मैंने पहले भी कहा था है ना, आर्ट्स के कितने सारे टूल्स होते हैं। स्लाइम हो गया, ठीक है स्लाइम हमने लिया। अब देखो जिस बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, अगर आप उसको स्लाइम भी दोगे। अब मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको इधर ही करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। और ये टेक्निक ऐसी है कि एक मिनट, लेट मी। एंड आई थिंक फरिया इधर बस मैं एक पॉइंट बोलूंगी कि जो बच्चे कलर्स की आइडेंटिफिकेशन भी जानते हैं, वो ये तो नहीं जानते ना कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक 7 साल की बच्ची हूँ और मैंने रेड कलर इसलिए उठाया नहीं अपनी आर्ट थेरेपी में कि वो रेड कलर है, मैं जानती हूँ मे बी बिकॉज अनकॉन्शियसली उस रेड का जो मेरा मेरा कनेक्शन था विद दैट कलर, that was important at the time. So even I think with children who don't know about the color identification name, even if they are picking up colors, why did they pick up that color? Not because they identified the colors, because they connected to बिकॉज it, ऑफ and that is what we need to सो work on. मच। हाँ वो पेन जो होता है ना, वो तो आर्ट थेरेपी की सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि आप ना कोई सा Even if कलर a उठा child सकते हो उस knows टाइम पे। about the अब अगर colors, ऐसा होता है, you need to work हाँ on the connection with the color, not because the child knew. This is what I think. सही बात है। अगर कलर से होता नहीं है तो पेपर हो गया, पेपर आपने उसके हाथ में दिया, अब आपने उसको वो सिचुएशन दोबारा से रिकॉल करवाई। ऑब्वियसली रिकॉल करवाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी हमें ये चीज पता चलती है कि वो क्या उसके इमोशंस है, क्या उसका वो है ना खौफ एंजाइटी है। पेपर लिया, अब वो सोचते सोचते वो इतना ज्यादा ऑब्वियसली पेन होता है, तो वो उस पेन को जो ना उसी पे निकाल देगा, ठीक है। तो आर्ट करने के भी ना टूल्स होते हैं, स्लाइम हो गया, क्ले हो गया, ठीक है। और वो जो मैं कलर्स के अलावा भी और बहुत टेक्निक। हाँ कलर्स के अलावा भी टूल्स है, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये क्ले और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, अभी आगे आ रही है टेक्निक, साथ साथ टेक्निक्स हैं मेरे पास अच्छी खासी और बहुत हेल्पफुल टेक्निक्स है, तो मैं ये खुद बताऊंगी आगे। अभी ये तो अभी अच्छा, ये भी ले लेते हैं कि what techniques can be used for a non-verbal, a child with limitations. I think ये इसका भी तुम जवाब उसके साथ ही शायद
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं दे दूंगी फिर। ओके ओके, ओके, गो तो अहेड। अभी हम आगे चल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आगे हमारी जो थर्ड टेक्निक है वो है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग सबसे अच्छी मुझे ये टेक्निक लगती है। देखो, गुड सेल्फ गुड सेल्फ एंड एंड बैड बैड सेल्फ। सेल्फ, गुड सेल्फ एंड बैड सेल्फ। बैड सेल्फ। ठीक है, स्प्लिटिंग का ये होता है कि हमें जो है ना गुड सेल्फ को और बैड सेल्फ को अपने अंदर से स्प्लिट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बैड सेल्फ को अपने साथ रखेंगे तो वो ऑब्वियसली गुड सेल्फ पे हावी हो जाएगा, और वो हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी हर चीज को वो बिल्कुल खत्म करता रहेगा, अच्छा फरिया, ओवर तोड़ता हियर रहेगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द बैड सेल्फ? लाइक ओके, अगर हम एक विक्टिमाइज्ड बच्चे की बात करें, who has been a victim of abuse, what is the bad side in him or her? ओके, बैड सेल्फ जो है हर एक के लिए ना अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे लिए अलग होता है, उनके लिए अलग होता है। जो ये जो बच्ची आई थी ना, ये मैंने सारी टेक्निक्स उसके ऊपर की थी, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जो टाइम था, ये मैं आपको बता रही हूँ 3 साल पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है। और वो मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मुझे इस चीज के लिए हार्डवर्क करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे कोई था भी नहीं। ठीक है, और ये आर्ट थेरेपी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ठीक है, तो ये मैंने सारी टेक्निक्स उस पर की थी, और ये आपके सवाल का जो आंसर है मैं आपको इसी में दूंगी। ठीक है, कि उसने मुझे किस तरह से बताया था गुड सेल्फ का, बैड सेल्फ का, हर चीज जो बताई थी उसने मुझे कैसे बताई थी, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब Yeah. यहाँ पे अगर हम आए, तो मैंने उससे कहा था कि देखो, हमारे अंदर अच्छी भी होता ना, हम अच्छे भी होते हैं, हम बुरे हो भी होते हैं। ठीक है, हमारे टू साइड्स होते हैं। तो और जो टू साइड्स है ना, आप अगर उनको अलग अलग हमें इस पेपर पे ड्रॉ करके दोगी तो कैसे करोगी ना, तो शी आस्क मी कि ना, है ना, अगर आप करोगी तो कैसे करोगी। ठीक है, तो यूं भी सवाल सवाल आते हैं। तो पहले ऐसा था कि और मैंने खुद उसके साथ अपना वो पूरा शेयर किया कि मैं ऐसे करूंगी और फिर यूं करूंगी, अब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसने किया ना, तो आई वाज लाइक, यार ये वाकई ये चीज होती है। अब उसने ये किया कि पहले उसने अपना गुड सेल्फ को ड्रॉ किया। अब उसने अपना गुड सेल्फ ऐसे ड्रॉ किया कि एक सेल्फ बनाया, उसमें पूरा सूरज भी था, फ्लावर्स भी थे उसके साथ। और जब नेक्स्ट उसने दूसरा जो सेल्फ बनाया ना, वो देखकर आई वाज लाइक कि ये वाकई बैड सेल्फ और गुड सेल्फ का कॉन्सेप्ट उस टाइम तो मुझे खुद भी ठीक से क्लैरिफाई हुआ था। इसलिए कि देखो, आप तक एक होता ना कि ना, हम चीज को ना एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, ये चीज इस तरह से होगी। फिर उसने जो अब जो बैड सेल्फ उसने बनाया था ना, वो उसने ऐसे बनाया था, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ये देखो, एक मिनट, Which one is the good self? Okay. Okay, okay, ये I get वाला, it. वेट वेट वेट, ऊपर मैं लिख यहाँ दो। लिख देती हूँ, गुड सेल्फ और बैड सेल्फ। दिख रहा है इधर से या ऐसे। ठीक है, हमारी ऑडियंस को भी दिख रहा होगा आई थिंक, तुबा। या दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। या ठीक है, अब आपको समझ आया कि बैड सेल्फ और गुड सेल्फ का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, so through that picture what was she trying to express, the child? शी ट्राइंग टू एक्सप्रेस के जो मेरा गुड सेल्फ है ना, अब वो खत्म हो रहा है। पहले ऐसा था कि मैं इतनी अच्छी थी, कॉन्फिडेंट थी, स्कूल में टीचर्स के साथ बहुत अच्छी होती थी, लेकिन तब से ये हुआ है ना, तो मेरा जो बैड सेल्फ है ना, वो ज्यादा ऊपर आ गया कि मैं रोती रहती हूँ, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है मैं क्या करूं। अब पढ़ाई करनी नहीं है मुझे, इसलिए कहना, स्कूल में जो है ना ऐसा ही होता है, हर किसी के साथ ये होता है। अब वो माइंड में जो है ना एक
चीज अगर आपके रुकती है ना, ऑब्वियसली 13 years old तो कुछ भी नहीं होता। 13 years old वो एज होती है कि ना उस एज में हमारी आदतें ऐसी होती हैं, ठीक है, कि पूरी सेट होने वाली होती है, वो चीज होती है। तो इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट है, और ये इससे हमें इतना पता चलता है कि हमारा बैड सेल्फ इतना पावरफुल होता है हमारे गुड सेल्फ पे, ये चीज होती है। तो गुड ठीक है, सेल्फ पावरफुल नहीं हो सकता ऑन द बैड सेल्फ? गुड सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको गुड सेल्फ को भी हील करना पड़ता है, क्योंकि आपके अब्यूज की वजह से आप वो जो इमोशंस इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं बच्चे के वो सेल्फ रेगुलेट नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ किसी ने यूं पकड़ा है, ठीक है, आपके स्कार्स हैं, और वो जो स्कार्स होते हैं ना आपके, वो गुड सेल्फ पे भी हो जाते हैं, सिर्फ बैड सेल्फ पे नहीं होते। तो पहले हमें उसको निकालना पड़ता है, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चीजें करके। अभी जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू हमें उस चीज को निकालना पड़ता है। तो ये चीजें ऐसी होती है कि ये आपके थॉट्स को जो है ना वो तोड़ती हैं और पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। ये टेक्निक्स हैं, ये जो आपको मैं सब सिखा रही हूँ अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को मैं ये बता रही हूँ कि ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये टेक्निक्स हेल्पफुल होती है। अभी आगे भी और भी टेक्निक्स हैं, और वो टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मैं यही कहूंगी कि कोशिश करें कि हर में भी ये हो सकता है। ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है आपको इधर से भी हर चीज से एक होता ना कुछ ना कुछ वो करना हो। ये तो हमें घर पे भी टूल्स होते हैं, आर्ट के टूल्स, बिल्कुल क्ले वगैरह होता है, या कुछ भी इस तरह से स्लाइम, और ये चीजें हो जाती है हमारे घर। बिल्कुल, ये टेक्निक है, ठीक है। आई होप कि ये टेक्निक सबको समझ में आई है जो मैंने समझाई है जिस तरीके से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फरिया, वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू सुबह। अब हम अगली टेक्निक पे चलते हैं। हमारी अगली टेक्निक है फिजिकल एंड मेंटल सेंसेशन। फिजिकल एंड मेंटल सेंसेशन, ये टेक्निक आ गई है उसकी प्ले की जो है ना, अब ये टेक्निक आ गई है। अब देखें, प्ले तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो मैं आपको वो टेक्निक यूं ही बता देती हूँ कि इस टेक्निक में ये होता है कि हम वो जो है बच्चे को ये बोलते हैं कि ये प्ले रखा हुआ है, ठीक है, अब आप अपने ऊपर रख के सोचो कि ना आप क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, वो जो बच्ची आई थी उसको मैंने कहा था कि ये मैंने प्ले रखा हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं सूरज हूँ, ठीक है, आई एम अ सन, सही है। तो मैं अगर इससे पूरा एक सन अगर प्ले से जो है ना पूरा ऐसा बनाती हूँ, ठीक है, तो ये तो मुझे वो करता है कि मतलब मुझे एक उतना इंट्रोड्यूस करता है कि आई एम अ सन, सही है। तो आप ये बताओ कि अगर आप इससे ये कुछ इस तरह से करोगी तो आप क्या हो। तो उसने कहा था कि आई एम अ फ्लावर, ठीक है, और मैंने कहा फ्लावर अगर आप हो तो क्या आप इससे कुछ इस तरह से वो कर सकती हो। तो उसने आपको मैं पेपर पे बनाकर बता सकती हूँ कि उसने किस तरीके से वो फ्लावर को बनाया था, ठीक है। इतना तो मुझे याद है कि उसने उस फ्लावर को किस तरह से बनाया था। उसने ना फ्लावर बनाया था हाफ, जो उसके पेटल्स जैसे होते ना वो नहीं ड्रॉ किए थे, खाली वो नीचे से यूं करके और इस तरह से। अब जैसे ये देखो, ये ठीक है, कुछ इस टाइप का उसने उसने उस टाइम वो क्ले पे बना लिया था। तो मैंने उससे पूछा कि आपने पेटल्स क्यों नहीं आपने बनाए। तो शी वाज लाइक कि ये तो अब है ही नहीं ना, अब तो मैं हंसती नहीं हूँ, तो मैं अगर हंसूंगी तो ये चीज यहाँ पे बनेगी। तो ये जो बातें होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और उसके बाद सुबह अराउंड हाफ एन आवर वो उसी के साथ ना खेलती रही, प्ले के साथ, कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो बार बार इसी तरह से बोल रही थी कि ताकि वो चीज उसके हाथों में जब सेंस हो रहा था ना तो उसको वो चीज अच्छी लग रही थी। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि हमारे आर्ट के और भी टूल्स हैं,
ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं अपने खुद के बच्चों पे। और सबसे बड़ी बात कि देखो, पेरेंट्स होकर अगर आप उनके साथ बैठ के अगर आप काम करोगे ना, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, ठीक है, एब्सोल्युटली, इंस्टेड ऑफ जो ना आप उससे कहोगे ये अकेला है ना, अकेले ही हो जाएगा, अकेले कुछ नहीं होता। एक अब्यूजिव है, आप ये कहना आपकी औलाद इतनी अब्यूजिव है बेचारा, वो जो कुछ भी है कि उसको इतना अब्यूज किया गया है, अब उसको आप उसी चीज में अकेला छोड़ दोगे तो वो खुद कैसे करेगा? ठीक है, बिल्कुल। तो खुद नहीं हो सकता, ये है। सही एंड है। आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम होगा, देन लाइक अ बॉन्डिंग टाइम एज वेल, कि आपको टाइम मिलेगा टू रियलाइज व्हाट योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, एंड देन बिल्कुल। फिर आई थिंक फिर तब पेरेंट्स के लिए बहुत आई ओपनिंग भी होता है कि ओके, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा ये फील कर रहा है, अब आई नीड टू देखो, बी मोर ये जो क्लोज, मैं आई नीड टू हाँ, बी मोर यू। हम्म, ये जो मैंने शुरू से टेक्निक सिखाई है, इससे इतने इमोशंस, कितने टीयर्स हमारे, कितनी एंग्जाइटीज खुद ब खुद सामने आ गई हैं, कलर्स के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल, राइटिंग के थ्रू, प्ले के थ्रू, हर चीज के थ्रू हमको समझ में आ गया कि यार ये इस तरीके से होगा और इस तरीके से जाएगा। ये है। अब सबसे लास्ट जो टेक्निक है ना, वो मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है, सबसे फेवरेट, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और मैं कहती हूँ कि ये जो है ना, सबको करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए। ठीक है, ओके। ये है रेज एंड रेजोल्यूशन। रेज एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, रेज हम सबको पता है, हम सबके अंदर होता है। और अब्यूजिव चिल्ड्रन के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि वो अपनी हेल्प कर नहीं पाते, तो वो चीज उनके अंदर इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब ये हम करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू हम ये करते हैं कि मैं उसको कहूंगी कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, इसका एक जो है ना, उसको कुछ ना शेप होता है ना, उसको मैं इस तरह से जो है ना करके ना इसे आगे और जो है ना रख लूंगी। ठीक है, और उसको मैं कहूंगी कि आप सोचो कि ये वो स्वीपर्स हैं, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको गलत पे हाथ लगाया, गलत जगह हाथ लगाया, और ये सारे वो स्वीपर्स हैं। फिर उसके हाथ में जो ना एक आइसक्रीम स्टिक मैं पकड़ाऊंगी और मैं कहूंगी कि अब आप इसको टैबिंग करो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो है, वो अपना गुस्सा, अपना वो रेज है ना, वो उस चीज पे निकाले। और ये चीज हुई थी, ये मेरी सबसे आखिरी टेक्निक है पूरी इस चीज में, आर्ट थेरेपी की। और ये जब मैंने की थी, उसके बाद मेरा सेशन ऐसा हुआ था तूबा, बहुत लाइक मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती फीलिंग्स में। उस बच्ची ने जो उसका हशर किया था, मतलब वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, वो जो शेप था, आप सोच भी नहीं सकती, वो बिल्कुल ऐसे चूरा चूरा होकर वो बिल्कुल टेबल पे ऐसे पड़ा हुआ था, कि उसने उसको यूं 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 करके स्टैबिंग किया था कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, गलत किया, गलत किया। और फिर उसके बाद वो रोती रही साथ में, वो रोती रही, वो रोती रही, वो इतना रोई। फिर उसके बाद मैंने उसको रिलैक्सेशन की कुछ टेक्निक्स करवाई थी, फिर मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली इस टाइप से उसको हील किया। तो रेज और रेजोल्यूशन की जो टेक्निक होती है ना, वो ये चीज है। और मैं ये सोचती हूँ कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है बच्चों के लिए भी, इवन हमारे लिए भी। हम ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम उनको हार्मफुल कोई ऐसी चीज उनके हाथ में ना खुद ना रख नहीं सकते, तो हम लोगों ने ना मतलब आइसक्रीम स्टिक, तो मैंने सोची कि मैं आइसक्रीम स्टिक के थ्रू अगर टैबिंग में करवाती हूँ बच्चे से, तो कैसे मतलब होती है। तो इस तरीके से फिर जो है ना, वो एंड हेल्प आई हुआ। थिंक वो किसी ने कमेंट भी किया, और मैं बस ये बोलने ही वाली थी कि कुछ लोग अपने घर में पंचिंग बैग्स, बोबो डॉल्स, इस टाइप की हाँ, चीजें रखती है, जिससे ताकि बच्चा हेल्दी वे में, यू नो, किक बॉक्सिंग किट और इस तरीके की चीजें, हाँ, ताकि बच्चा एक हेल्दी वे में निकाल हाँ, सके। आई न्यू अ मदर जिसका एक इतना जबरदस्त आइडिया था। शी बॉट अ ड्रम सेट फॉर हर सन। तो वो क्या करता था, ड्रम बजाते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था।
and he's one of the सही very good drummers right now. And then इस तरीके से बहुत ही वो मिल जाती है बच्चों को, मीडियम्स, हेल्दी मीडियम्स मिल जाए, देन रेजोल्यूशन हो जाता है ऑफ द रेज. इट्स अ वेरी गुड आइडिया, एब्सोल्युटली. एंड किसी ने ये कमेंट किया, उनका नेम तो नहीं हो रहा, कि बच्चों के एक्शन से भी आइडिया होता है. ऑफ कोर्स आइडिया होता है. आई थिंक पिछले अगर आप हमारे सेशंस पे जाएं तो प्लीज जरूर देखें कि हमने इस बारे में बात की है कि कैसे बिहेवियरल चेंज और वो क्या एक नॉर्म से हट के बच्चा करने लगता है, जिससे आइडिया हो जाता बिल्कुल है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. बट अगेन, अगर आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर पा रहा है इस बारे में डर रहा है, तो यहाँ पे जो फरिया ने टेक्निक्स बताई हैं, दैट वुड हेल्प. कि अगर आपको कहीं भी इंडिकेशन लगती है कि बच्चा इज नॉट बिहेविंग एज नॉर्मल and he or she is not talking to you, they are trying to avoid your questions, trying to उसको जंप कर रहे हैं, तो आप प्लीज इस तरीके से इनडायरेक्ट अनकॉन्शियस वे में टारगेट करें. गुड. और फरिया, एक और क्वेश्चन आमना ने किया था कि कैन यू शेयर एनी रोल प्ले टेक्निक्स विद स्टफ टॉयज बाय द एंड. हाँ, हो सकता है रोल प्ले. ये हमारी प्ले थेरेपी की टेक्निक आएगी, ये आर्ट थेरेपी में नहीं आएगी. प्ले थेरेपी और आर्ट थेरेपी ना अलग अलग है, डिफरेंस है. तो ये हम टॉयज के साथ जो टेक्निक्स कर सकते हैं ना, वो हम प्ले थेरेपी में करेंगे. ठीक है, टॉयज के साथ अगर हम टेक्निक ये करेंगे और ये जो रेज और इस तरह की जो टेक्निक मैंने बताई, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनसे कह सकते हैं कि टॉयज के थ्रू, अब अगर हमें किसी से वो एक होता है ना, इस तरह है जो अब्यूजर ये जो होते हैं बच्चे जो होते हैं, तो ये पहले तो खुद से आके कहते नहीं है. तो हम ये कर सकते हैं कि टॉयज रखे हुए, अभी हमें काम करते हैं टॉयज के साथ. ये जो तुम सवाल जवाब दे रही हो फरिया, इट्स गोइंग टू, ये जवाब इस क्वेश्चन का भी है जो ज़ैनब ने पूछा है कि हाउ कैन यू हेल्प एन अब्यूज्ड चाइल्ड who has intellectual disability, what techniques can be used, because I feel like children with special needs are abused a lot because people they don't see anything in it. मैं इस पे आ रही हूँ ज़ैनब, मैं इस पे आ रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ था. मैं बस आ रही हूँ, मैं पहले आमना के क्वेश्चन का जवाब दे दूं, वो जो मैं टेक्निक बता रही थी. सॉरी, हम लोग जो स्ट्रीम यार्ड यूज करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, देयर इज दिस लिंक, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करें आपका नाम शो होगा. सो मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ उस पे आपका नाम सिर्फ एज अ फेसबुक यूजर यूज हो रहा है, शो हो रहा है, इसलिए मैं आपका नाम नहीं देख सकी. तो फिजा, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. क्या फरिया, प्ले थेरेपी जो है, हाँ, तो हमारे पास जो ना टॉयज रखे हुए, ठीक है, टॉयज रखे हुए, अगर ऐसा है कि हमें उससे एक उतना इमोशंस को ना रिलीज कराना है, तो हम एक कह सकते हैं कि ना आज हम एक कहानी सुनाएंगे. ठीक है, आपस में. तो वो जो कहानी स्टोरी टेलिंग होती है ना टॉयज के थ्रू, ठीक है, हम उस तरह की स्टोरी इस तरह से रख सकते हैं कि वो उसके इमोशंस और जो ना एक उतना रिलीज भी हो जाएंगे. ठीक है, एंग्जाइटी उसकी ना उसी पे जो है ना वो निकलेगी कि ना एक अंकल था, उसने ये किया था और वो इस तरह से आता था. लाइक किसी भी तरह की जो कहानी ना वो टॉयज के साथ जो है ना हम करके और इस तरह से जो है ना बच्चों के साथ कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है, तो ये टेक्निक भी हम यूज करते हैं. ज़ैनब के क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ये है कि मेरी एक क्लाइंट थी. ओके, ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मतलब आंसर मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा इसी साथ ये हुआ था कि मैं जब सेशंस करती थी उसके बाद मैं घर पे आकर, मतलब घर पे ऐसा होता कि मैं आकर मैं खुद भी बहुत रोई हूँ उसके बाद, सेशंस के बाद, आफ्टर एवरी सेशन वो चीज हुआ था. तो एक बच्ची थी, शी इज अराउंड 16 years old, यस, और वो जो है वो देख नहीं सकती थी, शी कैन नॉट सी. ठीक है, वो देख नहीं सकती थी और उसके टीचर ने उसको अब्यूज किया था. सही है, और उसके टीचर ने उसको तकरीबन आई थिंक एक वीक तक वो उसको अब्यूज करता रहा और उसको ये कहता रहा कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुमको इस स्कूल से निकाल दूंगा और तुम्हें कहीं पे भी फिर जो है ना वो लोग ना रख नहीं सकेंगे. ठीक है, कुछ इस तरह से उसको कहा था. और उसके बाद जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब उसके एक्शन से, कि जैसा आपने भी
कहा था कि उन एक्शन से भी पता चलता है। तो उसकी अम्मी लेकर आई थी मेरे पास, और उसकी अम्मी ने आते साथ ही कहा था कि इसके अब्बू को तो कुछ जो है ना आइडिया है ही नहीं इस चीज का, तो हम लोग उनसे छुप कर आए हैं, इसलिए कि अगर उसके अब्बू को पता चला ना तो वो जो है ना गुस्सा हो जाएंगे बहुत ना। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर वो इतना गुस्सा हो जाएंगे तो एटलीस्ट वो अपनी अपनी औलाद के लिए तो खड़े रह सकते ना उसी गुस्से में। ठीक है, गुस्सा हाँ अगर तो ये आप बात है, मतलब मैं सही समझी नहीं, उस पे, हाँ, मतलब गुस्सा तो किस पे हो जाएंगे? नहीं, गुस्सा उन पे हो जाएंगे कि तुमने ये निकाला ऐसे इसको घर से बाहर, कि तुम इसको थेरेपी के लिए क्यों लेकर आ रही हो। वो अच्छा, ये थेरेपी कहते के लिए गुस्सा उनको, हो जाएंगे, हाँ, ओके हाँ, ओके उसको कहा था, हाँ। तो उसकी ओके। अम्मी आई थी, फिर उसकी अम्मी ने कहा था कि भाई इसके साथ ऐसे ऐसे हो गया है, अब आप कुछ इस तरह से करो कि ये हील हो जाए ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, फर्स्ट में ऐसा हुआ था तुआ कि जब मैं उसको यूं भी करती थी ना, वो चीखे मारती थी वो लड़की जोर जोर से, बहुत ज्यादा। जो सेंस होता है ना, टच होता है ना, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी अपने आप को। ठीक है, या तो वो चीज उसके लिए भी, तो वो जो पेन होता है ना, वो पेन वो मैंने इतने करीब रह के उसके साथ फील किया है, उसका पेन, कि ये कितना पेन था उसके लिए, बच्ची के लिए। was she फिर उसके sexually बाद abused or he used to सेक्सुअली like beat her? सेक्सुअली अब्यूज थी, ठीक है, और डोमेस्टिक है, मतलब अब्यूज भी था, उस पे हाथ भी मारता उठाया भी था होगा उसने एक या जगह। या तो फिर जो है ये हुआ था कि मैं कि जो है वो इस तरह से ना मतलब वो मेरे हाथ में नहीं आ रही थी, एक दो सेशंस तो मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा इंटरएक्शन के लिए ना अपने कुछ मतलब सीक्रेट्स है ना उसके साथ ना शेयर किए, है आपको पता है ऐसा भी होता है और इस तरह से हो जाता है, सीक्रेट्स उसके साथ तो मैंने अपने शेयर किए। फिर उसके बाद उसने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कहा था कि हाँ वो मेरे टीचर थे ना, वो मुझे हाथ लगाते थे। तो मैंने कहा वो आपको कैसे हाथ लगाते थे। और वो जब उसने कहा ना उसकी कि मतलब तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो जो है ना मतलब वो कहते कहते रोने लग गई। और वो इस तरह से रोई कि उसने मेरा हाथ यूं होल्ड किया है, और उसने इतना टाइटली मेरा हाथ होल्ड किया था कि मैं अपना हाथ उससे मतलब हटा नहीं पा रही थी, यूं करके बिल्कुल ऐसे करके मैं वो देख नहीं सकती। और उसने मेरे साथ ये चीज की, उसको सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात का था। और वो 16 साल की बच्ची, अब 16 साल की बच्ची को इतना तो सेंस ऑब्वियसली ये चीजें उसके दिमाग में होती हैं, ठीक है। तो या ये चीज थी। फिर मैंने जो है तो उसका जो जो है ना उसकी मदर एंजाइटी, थी उनको ये पता था कि उसके साथ ये हुआ है? हाँ उनको ये चीज पता थी, फैमिली को भी लेकिन पता था? नहीं, सिर्फ उसकी अम्मी को पता थी। वो अपने और शोहर उन्होंने से किसी इतना और को नहीं ज्यादा बताया? नहीं, उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनके शोहर इतने गुस्से वाले थे, इतने गुस्से वाले कि अगर उनको तो मैंने कुछ कहा ना तो हमारे खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। तो वो अगर वो गुस्से वाले हैं तो वो जाके उस टीचर को नहीं डांटेंगे? नहीं, वो कहेंगे कि क्या हमारी करेंगे? औलाद की गलती है, हमारी बेटी की गलती है, ये क्यों रुकी उसके साथ वहां पे। अब आपको तो नहीं पता ना कि वो रुकी या उसको रोका गया वहां पर। ये पेरेंट्स का हाल है, नहीं, और अगर ये रुकी भी पेरेंट्स उसको का हाल। भाई, उफ, क्या बोलूं मैं, खैर यू कंटिन्यू, आई एम जस्ट सो मैं आपको बताऊं ना कि disgusted इस by right केस now में, that I can't even. हाँ, इस केस में जो है ना तुबा इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे, इस तरह के स्टेटमेंट आए थे, आप यकीन करो कि एक केस एक होता ना आधे उसमें ही जो है ना उसकी अम्मी उसको निकाल के वो ले गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि जो ना अगर इसके अब्बू को पता चल गया तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा। उसको मैंने पूरी तरह से हील भी नहीं किया था, वो आधी मतलब वो उसी में जो ना था। अब वो यहाँ से यहाँ आ गई थी बस, थोड़ा सा और अगर ऊपर होती तो शायद ठीक हो जाती, लेकिन वो उसको बीच में से ही निकाल के ले गई कि मैं नहीं करवा सकती, अब मुझसे नहीं होगा। और हर सेशन में वो लड़की
चीखे मार मार के रोती थी। एक सेशन मेरा ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने उसका पेन शेयर ना किया हो, एक मेरा सेशन ऐसे नहीं गुजरा। तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा। मैंने ना स्लाइम से हेल्प। फरिया, इतनी शर्म शर्म की हाँ, बात है कि आप ऐसे पेरेंट्स कहलाने के काबिल नहीं है कि वो पेरेंट्स हैं। ट्रू दैट, उनको ट्रू दैट। आई डोंट नो कि कैसे अल्लाह उनको कैसे भूल गए हैं कि वो एक जान है, वो एक अल्लाह की भेजी हुई एक मखलूक है, आपकी औलाद है। कैसे भूल जाते हैं ये लोग, ये कोई नहीं कैसे समझता अपने ये। आप के साथ रहते हैं ये लोग। बस हमारी इज्जत खराब नहीं हो जाए यार, तुम्हारी इज्जत तो तुम्हारी ऑलरेडी जा औलाद ही तो चुकी तुम्हारी है। इज्जत है। तुम्हारी इज्जत, तुम अपनी इज्जत की हिफाजत ही नहीं कर सके, तुम अभी क्या उठ के ये बात कहते हो कि हमारी इज्जत जो है ना, इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत नहीं रहेगी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये चीजें होती हैं। और मैंने पेरेंट्स की इतनी गलत बातें सुनी है तुबा, एज अ थेरेपिस्ट, के आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। मतलब क्या, मैं क्या मैं खुद गलत करें? खुद आपके कि आप गलत कर रही हैं। आप लोग इस तरह के केसेस क्यों उठाते हैं? और इस सॉरी टू तरीके से, के केसेस होते क्यों हैं? इस यही तरीके तो, के केसेस होते क्यों हैं? दैट इज द क्वेश्चन। आप केसेस उठाती क्यों हैं? शेम ऑन यू। लोग जो है ना सेक्सुअली उस पे जो है ना बातें करना ही नहीं चाहते। आप यकीन करो कि मेरे पास कितने पेरेंट्स आए थे, तो उसकी एक की तो ना अम्मी वाज लाइक, मैं तो इससे कभी भी सेक्स की बात करती ही नहीं हूँ, मैं तो करती ही नहीं हूँ ये बात। ये कोई ये जो ना अपनी औलाद के साथ करने का कोई टॉपिक है? अरे यार, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई अगर उसको गलत एडवाइस के साथ कुछ और वो करे तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप एंड उसको करियर वी अच्छी नीड टू एडवाइस बी दे रही रियलिस्टिक दैट व्हेन अ हैं। चाइल्ड, ये हमें पता है कि जब एक बच्चा 6 साल की उम्र में पहुंचता है तो वो क्वेश्चन करने लगता है, मामा मेरा ये पार्ट क्यों है, मामा उसका हाँ, ये पार्ट क्यों नहीं है। हाँ, यू नो, दे एक्सप्लोर हाँ, इट, दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। वो क्वेश्चन उनका बिल्ट ऑन होता रहता है। ये एक अल्लाह की सही तरफ बात से है, दी हुई एक चीज है। यू नो, यू सही बात है, कांट और क्या। ये कि हम क्यों करें, हम कैसे करें। आप उनके लेवल पे आके उनको इतनी अवेयरनेस तो दें कि दे नो कि इफ समवन इज डूइंग इट इन दिस वे दैट्स रॉन्ग। मैं खुद जहाँ पे होके सबसे, मतलब अपनी ऑडियंस से, पेरेंट्स से मैं यही बात कहूंगी, एज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आपको खुद को जो है ना इतना आइडिया होता नहीं कि आपकी औलाद किस चीज से मतलब सफर कर रही है। इतना पेन होता है इसमें, इतना पेन होता है कि अगर हम लोगों को हल्का सा कोई ऐसे भी करता है ना, तो भी हम एक होता ना गुस्सा हो जाते हैं कि इसने मुझे हाथ कैसे लगाया। तो ये तो अब्यूज, किसी को सेक्सुअली अब्यूज करना, किसी के ऊपर हाथ उठाना, ये चीज तो इतनी एक्सट्रीम पर जा रही है। उसके बावजूद भी लोगों को अक्ल ही नहीं है। आपको पता है हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में, मैंने खुद रिसर्चेस पढ़ी हैं, टूबा जो है ना, ये जो स्पेशल, ये जो हमारे होते हैं ना, सारे बच्चे होते हैं ना, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, इनके साथ सबसे ज्यादा, मोस्टली सबसे ज्यादा लोग अब्यूज करते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते, वो हेल्पलेस होते हैं बच्चे, इसी वजह से। एब्सोल्युटली। और अगर हम उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, तो हम ये चीज गलत करें कि मैं तो भाई अपने बच्चे से ये बात करती ही नहीं हूं, मैं कैसे बात करूं? अरे यार, ऐसे का क्या होता है? करो तो मुझसे बात, पता है, मतलब ये क्या तरीका है? पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। मैं एक बहुत क्लियर बात करूंगी, मे बी इट्स वेरी हार्श बट आई एम गोना से इट। हम्म, अगर कभी आपके पास आपका बच्चा आता है, बच्चा या बच्ची किसी भी एज का, माइनर में, बिलो 18, और वो आके आपको कहता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, और आपने उसको पलट के कहा कि बेटा ये बात किसी को नहीं बताना, छुपा दो, उससे बेहतर है कि आप उसको मार दें। आपने जो ये ट्रू किया, दैट, आपने इनडायरेक्टली उसका मर्डर कर दिया।
आपने उसकी तकलीफ के साथ उसको बर्दाश्त बोल दिया कि भाई ये तो कोई अहमियत है ही नहीं, तुम्हारे जिस्म की, तुम्हारी खुददारी की, तुम्हारी तुम्हारी अपनी ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम जैसी बाहर से देखोगी वो वैल्यू है हमारे, हम जो अंदर से सही फील बात। करी उसकी कोई कदर नहीं है। तो इनडायरेक्टली आपने उस वक्त अपने बच्चे का मर्डर कर दिया, क्योंकि उस वक्त आपने उसकी नहीं सुनी। वो जिस तकलीफ में आया आपके पास, सोचो अगर किसी बच्चे का, वही मैं बार बार ये बात कहती हूँ, बच्चे का किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो खून से लथपथ घर आए, क्या आप उसको ये बोलेंगे कि आप बेटा तुम जाओ सिर्फ मुंह हाथ धो लो, तो कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, इस दर्द के साथ सहना हाँ, सीखो। आप पैरों से ले उस जमीन टाइम नहीं निकल बोलते। जाती है। और ऐसी कोई बात लेके आपके सामने आता है कि चलो अगर सेक्सुअली अब्यूज उस वक्त रेप अटेम्प्ट नहीं भी हुआ है, अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको नहीं पसंद, और आप ये बोल रहे हैं कि आप उसको बर्दाश्त करो, किस किस्म के लोग हैं ये, मेरी समझ से बाहर ये है। ये तो कुछ भी नहीं है टुवा। मेरे पास जितने अब्यूज के केसेस आए मोस्टली, अब फॉर देखो यहाँ एक चीज और है, जैसे कि एक जो है क्या, एक और केस आया था, उसमें एक एक 7 साल का जो है ना वो था, बच्चा था, ठीक है, 7 साल का, उसका एक कजन हमेशा उसको ना यूं करता था, बार बार यूं करता था, फिर ओह आहिस्ता आई आहिस्ता वो यूं गेट इट। करते करते वो यहाँ पे भी आ गया, फिर वो उसको यहाँ पे भी आ गया, फिर वो यहाँ पे भी आ गया। तो मतलब जो है क्या नाम है ना, तो जब ही टोल्ड मी, और उसने ये बात मुझे खुद बताई थी, और उसने मुझे कहा था है मैं अपनी अम्मी से ये बात कह रहा हूँ, है वो मुझे यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, लेकिन अम्मी मेरी बात सुनती ही नहीं है। तो मैंने उसको पहले तो मैंने निकाला बाहर उसको, ठीक है, फिर मैंने उसकी अम्मी से ये बात बोली, मैंने कहा इसमें पूरी गलती जो है ना वो आपकी है। मैंने कहा उसमें इसकी गलती नहीं है और ना ही उस बंदे की, और मैंने कहा उसकी तो चलो है ही है वो तो है ही ऐसा। मैंने कहा लेकिन पूरी गलती आपकी है कि आप इसकी बात सुन नहीं रही हो, आप कह रही हो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो मुझे आगे से कहती है वो तो इसकी खाला का बेटा है। मैंने कहा खाला का बेटा है तो खाला से कहो ना जाकर yeah. कि भाई ये ऐसा क्यों का जो है ना हो रहा है, तो मैं क्यों पता है ऐसा हो फरिया, रहा है। एक इंस्टेंस हुआ था विच आई आई फील उसकी वजह से ना एक थोड़ी होप पैदा होती है कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं। कि आई वाज इन अ वेरी स्मॉल गैदरिंग और अराउंड आई थिंक 50, नॉट मोर देन दैट, 50, और एक बच्चा, बच्चे बाहर खेल रहे थे, होता है सब अंदर है, बच्चे बाहर जाके खेल रहे हैं अपना, एंड देन अ चाइल्ड केम इन एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन द एडल्ट्स सेड के वो जो चाचू हैं वो आके मुझे कह रहे हैं कि मेरे साथ कमरे में चलो, सबके सामने, सही। because he was trained by his mother and father कि बेटा कभी गैदरिंग में ऐसा हो, बड़ों के पास आओ और चिल्ला के बोलो कि किसने किया और क्या किया, बिल्कुल सही ताकि बात है। सिर्फ आई तुमको एग्री। सेव ना कर सके, हम सबको पता चले कि कौन हु इज द वन हु इज डूइंग इट इन द फैमिली। यस यस यस। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट, और हम लोग लाइटली लेते हैं, और फिर बच्चा उस लेवल पे पहुंच जाता है जो तुम्हारे पास आई कि वो अब उसका चेस्ट पे जो उसने कलर किया, शी कैन नॉट बेयर इट दैट मच, वॉल्केनो फट रहा है उसका, और हम क्या कर रहे हैं, we don't even know, are we turning these innocent children into rapers and serial killers, we don't even know that how, but we are messed up and we need to do यस, something about it, everyone. वी आर, वी आर। I'm just so disgusted and annoyed to the core right now that ये जो तुमने एक गले वाली बात की, एक दफा मुझे याद है सिग्नल पे वो बच्चे नहीं होते जो वो जो डंडे के साथ हाथ में स्ट्रीट पहनने बेगल। वाला फूल, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, जो हाथ में पहनने वाले फूल का होता है कड़ा, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, गजरे एनीथिंग, जो बोलते हैं, गजरे, गजरे जो गजरे, बोलते हैं हाथ में, हाँ गजरे, गजरे। वो लेके बेच रहा था। तो मेरे सामने के बराबर वाली खिड़की ब्लैक टिल्टेड थी, वो उसके पास उसने नॉक किया, किसी ने बहुत देर तक शीशा नहीं खोला, वो होता है ना उन लोगों की आदत, दे कीप नॉकिंग इट अनलेस एंड until there is a response. Someone took down the window, I don't know if it's a female or a male because I was the back, he grabbed him from his neck, took the rod and pushed him so badly कि वो पीछे वाली गाड़ी पे जाके गिरा, and then they ran away, और थोड़ा सा आगे जाके फूलों का डंडा भी फेंक दिया।
इट वाज नॉट इवन कि वो चोरी करना चाह रहे थे फूल। हाउ रिडिक्यूलस इज दिस, हाउ मतलब सिर्फ इतने रिडिक्यूलस। से वक्त के लिए भी उन्होंने एक अब्यूज करने का मौका ढूंढा, हाँ, एक चाइल्ड अब्यूज मौका से ढूंढा, उनको सेटिस्फेक्शन मिल गई। तुम्हें पता सीरियसली। है एक बात, मैं उस का नाम भूल गई हूँ, शी रन्स, शी सच अ स्वीट गर्ल, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। शी रन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर स्ट्रीट डॉग्स, सेविंग स्ट्रीट डॉग्स। बहुत ही जिन जो कि अच्छा, तो शी एक्चुअली डिड अ वीडियो व्हिच वेंट वायरल बिकॉज शी वाज क्राइंग एंड शी वाज सेइंग दैट नाउ आफ्टर द इंसिडेंट दैट आई एम अबाउट टू कोट, शी सेड कि आई एम अ फेलियर और हमारी कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं है। बिकॉज वो क्या करती है कि वो स्ट्रीट डॉग्स को ले जाती है अपने वो जगह पे, वहां उनको खिलाती है, हील पिलाती है, करती है, इलाज हाँ, करती है। बट हील बिकॉज करती है। स्ट्रीट डॉग्स का हैबिटेट जो है वो स्ट्रीट है, तो वो ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं कि वहां कोई आबादी भी ना हो और स्ट्रीट डॉग्स जो है वो अपना रोम अराउंड करते रहे। बट रिसेंटली समवन टाइड अप डॉग्स एंड दे गिव देम पॉइजन, और उन लोगों ने सारे डॉग्स हाँ, को आपस में बांध दिया था ताकि वो भाग ना सकें, एंड समवन डिड इट जस्ट आउट ऑफ प्लेजर। सो द गर्ल वाज सेइंग इट इन अ वीडियो कि व्हाट डू यू थिंक, लोग मुझे कहते हैं तुम इतनी डॉग्स की परवाह क्यों करती हो, बच्चों की, इंसानों की करो। तो शी सेड समथिंग इन द वीडियो दैट स्टक इन माय हेड कि आप लोगों को क्या लगता है जिन्होंने ये किया है, क्या वो सिर्फ डॉग्स तक लिमिटेड रहेंगे? These are यही बात। psychopathic tendencies. This is going to come on children. Yes, ये Zainab सही कह रही है. This is Aisha, yeah, ACC Foundation, ACF, Aisha Chandrigar Foundation. Yeah, that's the one. And सही she है। did a video. She posted it on Instagram, and it was so, मतलब उसके हार्ट बाद मैं रेंचिंग, हिल गई हार्ट बिकॉज हम रेंचिंग, हैं ये हार्ट रेंचिंग। साइकोपैथिक टेंडेंसी। हमें यस, बच्चों को जोर से ग्रैब करने में, बच्चों को थोड़ा सा हाँ, मोलेस्ट करने में जो मजा बिल्कुल। आता है, यूं करके, ऐसे उससे हम करके, मजा ओ ढूंढ लेते मेरा बेटा। अरे यार, ठीक है, वो आपका बेटा है, लेकिन आप उसको ओ मेरा बेटा, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हैं। अगर आपको तकलीफ होती है तो उसको भी तकलीफ, यूं यूं करके पकड़ना बिल्कुल बच्चों को। ओ माय गॉड, ओ मेरा बच्चा, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मुझे मुझे तो वैसे भी इस तरह से हाथ लगाना किसी का, और छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से, ये चीज मुझे वैसे भी नहीं पसंद। ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत अनोइंग है, बहुत ज्यादा। और हमारी सोसाइटी में तुबा लोगों में इतना रेज, इतना अग्रेशन है, और वो यूं ही निकालते हैं हर एक के ऊपर। या या ये इसी वजह से है। और अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो भाई हम गलत हैं, आप गलत कर रही हैं। ये तुम्हें पेरेंट्स ने कहा है? ये मुझे सुनाई गई है बातें भाई, कि आप रुलाती हैं मेरे बच्ची को, आप जो है इतना गलत कर रही हैं, आप इस तरह के टॉपिक क्यों आप ले रही हैं? अरे भाई, टॉपिक की बात ही नहीं है, तुम्हारी बच्ची का केस तुम यहाँ लेकर आए हो, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, और तुम ये बात मुझे बोलो कि आप इस तरह के टॉपिक क्यों उठाती हैं, क्यों आप लेती हैं? आप सेक्सुअल इस तरह का सोचती हैं? अरे यार, इसमें सोचने की क्या बात है? आप नहीं सोचोगे तो हम सोचेंगे ना। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो हम सोच रहे हैं। ये चीज होती है। लेकिन लोग ये चीज, अभी तक ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये चीज सोचते ही नहीं है। अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं, काफी काफी है, वो लोग सोचते ही नहीं है। मैं कहती हूँ ना कि हम 2020 है जो है ना, है तुआ, लेकिन अभी भी हमारी सोच वहीं रुकी हुई है। हम आगे निकले ही नहीं है। हम हमें किसी चीज की अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। हर किसी को अपनी इज्जत की फिक्र होती है, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी इज्जत, लोग क्या सोचेंगे? भाई व्हाट द हेल, लोग लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी औलाद को इस तरह से अपने से अलग कर दो कि लोग इसका तो ना ये रेप हो गया, देखो, अब इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। सेक्सुअल अब्यूज अब्यूज तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है हमारी सोसाइटी में। चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज या डिसेबल बच्चों को छुपाया जाता है अपनी फैमिली गैदरिंग्स में, कि लेके नहीं जाया हमारी जाता, कमरों में बंद कर दिया जाता है शर्म आ बिकॉज रही है उनको हमें, शर्म आती है। हाँ, शर्म आ रही है हमें, हम इसको कैसे अपने साथ लेके निकलेंगे, हमें तो शर्म आ रही है। अरे यार, इसकी आंखें तो देखो,
यूं है इसकी आंखें, ऐसी है इसकी आंखें, इसको हम कैसे अपने साथ लेके जाएंगे, इसकी तो शादी नहीं होगी, ये देख लेना इसकी आंखें ऐसी है। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं छोटे छोटे। मैं हैरान होती हूँ कि यार वो 7 साल का है और तुम उसको इस तरह से कह रहे हो कि इसकी तो शादी नहीं होगी बड़े हो गए। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू। Yeah. This is the और ugly side. वेरी वेरी अगली साइड। और तुबा अब्यूज हमारे यहाँ मतलब यार सेक्सुअली अब्यूज होना, किसी का रेप होना, किसी पे हाथ उठाना, ये चीज कुछ छोटी बात नहीं है, लेकिन सबको ये चीज कुछ छोटी है ही हो नहीं। गई ना। अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, थोड़ा रो लो, ठीक हो जाएगा, रोने से ठीक हो भाई जाएगा सेल्फ सब कुछ। स्टीम ही मारी है ना फरिया, तुम ऐसे सोचो ना। सेल्फ स्टीम ही मारी है ना, सांस तो ले रहा है बच्चा। हाँ उसकी ये वो चीज। कोई टॉर्चर दिया है ना, सांस तो ले रहा है बच्चा। सिर्फ उसकी आपने इमोशंस की धज्जियां उड़ा दी, मगर सांस तो ले रहा है ना। तो मारा थोड़ी है आपने। आपने अंदर से उसको उसकी जान ले ली, मगर सांस तो ले रहा है ना बच्चा। ये जो मैं तुम्हें अभी बता रही थी उस बच्ची का, कि जो हर सेशन में इतना चीखती थी क्योंकि उसको इस चीज का अफसोस था कि मेरी आंखें नहीं है इसीलिए ये सब हुआ। तो उसको अभी अफसोस हो रहा था अपने ऊपर, अपनी जात पे, कि मेरी सेल्फ प्रेम आंखें आ नहीं जाता है है ना कि मेरे से ही इसलिए। कोई गलती सेल्फ हुई है, ब्लेम, हाँ मुझसे सेल्फ ही कुछ ब्लेम, कि गलत हुआ मेरी है क्या। आंखें नहीं है इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये जैनब ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जो लोग हैं ना जो ये करते हैं वो इसलिए करते हैं बिकॉज आई थिंक वायलेंस उनको एक सेंस ऑफ पावर देता है, जिसकी वो आदी हो यही जाते हैं चीज और मैं, वो एडिक्ट हो जाते यही हैं उस चीज कह सेंस रही के। थी कि और वो हमारी जहाँ रहते सोसाइटी। हैं शायद उनको हाँ वहां वो नीड फुलफिलमेंट नहीं मिलती, सो दे टर्न आउट एंड दे गो सीक समवन लेसर हमारी टू देम सोसाइटी में जिससे तुम्हारा रेज ध्यान हो। इतना है, फ्रस्ट्रेशन इतनी है, ठीक है, तो वो उसको ना ऐसे निकल, इस तरह से निकालते हैं अपने अंदर से। फिर हम हाथ उठाएंगे ना तो वो ऐसे हो जाएगा। अरे यार अथॉरिटी अगर आपको चाहिए तो आप हाथ उठा के क्यों है ना अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये आई जो थिंक टॉपिक है ना, हाँ, और ये जो टॉपिक है ना तूबा, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे हम इतना कुछ कह लें, लेकिन हम लोगों को, सोसाइटी को चेंज कर ही नहीं सकते वो जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे। या हमारे पास आते तो हैं लेकिन हमें सुना है भी जो है ना निकलते हैं कि आप और जो है ना गलत कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोग तो इस तरह के टॉपिक उठा रहे हैं, आप लोग तो इस तरह के केसेस ले रहे हैं, आप लोग और रुला रहे हैं हमारे बच्चों को। यू नो ये व्हाट, चीजें मैं सुनने को मिलती है। यही फरिया यही सोचती जब इस बारे में ये टॉपिक स्टार्ट करना था। कभी भी दूर दूर तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह करे ऐसा मेरेकल हो कि सब इस बात की अहमियत समझ जाए, मगर आई थिंक हम नहीं कर सकते चेंज, सबको खुद होना होगा। और सबको आई थिंक ये जो लास्ट सेशन है ये इस टॉपिक पर ये इसीलिए मैं चाह रही थी कितना इम्पैक्टफुल हो कि लोग शायद सोने से पहले सोचने पे थोड़ा मजबूर हो जाएंगे, यार मे बी कल से मैं अपने बच्चों के साथ ना थोड़ा और नरमी से पेश आऊंगा या आऊंगी। यार कल मैंने उसको सिर्फ इस बात पे थप्पड़ मार दिया कि उसने अपना दूध पूरा नहीं पिया, शायद मैं उससे बात करके देखूं प्यार से तो शायद वो दूध अपना पूरा पी ले, या खाना नहीं खाया था। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जिसमें हमने बच्चों के साथ अटैचमेंट पे काम करना है। जहां आप ये अटैचमेंट एक बीच में गैप आएगा, बुराइयां बीच में घुसेंगी, आपने वो इतना स्ट्रांग रखना है कि अगर कोई पेनिट्रेट भी करने की कोशिश करे तो आपका बच्चा आपसे बिल्कुल, इतना सिक्योर्ड हो कि वो कि वो चीज खुद एक आके तो शेयर प्रिवेंट हो करें। जाए, ना हाँ हो सके। और अगर सही गॉड बात है। फॉरबिड हो गई तो उसको पता है कि मैं मेरे साथ मेरे बैक पे मेरे मदर है, मेरे फादर है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। दे वो आर मुझे दे आर सपोर्ट विद यू, करेंगे किसी सूरत। इमोशनली सपोर्ट करेंगे। क्योंकि वो तो अंदर से बेचारे आधे ही मर चुके हैं आफ्टर व्हाट हैपेंड। अगर हम रेप अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं दैट इज, तो बस हमारी नजर में वो जिंदा है क्योंकि सांस ले रहे हैं तो हम काम चला लेते हैं। मैं ना बहुत खुश हूँ तुबा कि हमने ये टॉपिक उठाया और हम ये टॉपिक लेकर आए इस तरह से। है जो ना, अब ऐसा है कि देखना इंशाल्लाह हमारी इसी चीज से ना हर एक को मतलब समझ आ जाए एक कि जो ना, हाँ, ये जो अब्यूज होता है वो चाहे सेक्सुअल हो, वो चाहे
किसी ही तरह का हो, ये आपकी खुद की औलाद पे इतना गलत इम्पैक्ट वो लेकर आता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और और आप इसकी हद भी नहीं होती फिर उसके बाद, कहीं पे भी नहीं होती। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी कि हम लोगों ने एक साथ होकर ये टॉपिक हर सेशन में इतना अच्छा रखा। मैं सबकी तारीफ करूंगी अभी एंड में कि हम सब लोगों ने, आमना हो या कोई हो, मतलब हमारे इतने सारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हमारे साथ रह के ये चीज इतनी अच्छे तरीके से इधर लेकर आए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप कि हमारी ऑडियंस को ये चीज समझ आए कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम इसको इतना हल्का लेते हैं, तो मैसेज आगे भी तो पहुंचाए, हल्का मतलब नहीं अगर ले। एक भी समझ जाता है हाँ, विक्ट्री होगी, क्योंकि वो एक दो को समझाएगा, वो दो चार को समझाएंगे, चार आठ को समझाएंगे, ऐसे ही चलती अवेयरनेस की है ये, इट्स अ चेन रिएक्शन। तो हमारी टीम ने ये जो ना इतनी एफर्ट की है, इस चीज पे हार्ड वर्क किया है हमारी पूरी टीम ने। तो मैं हमारी ऑडियंस को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज इस चीज को आप लोग मतलब हल्का आप लोग ले ही नहीं, इस चीज को आप लोग इसको ठीक से है मतलब सोचो कि अगर आपकी औलाद के साथ कुछ ऐसा है कि ना गलत हो रहा है और वो आपकी आंखों के सामने है, तो कम से कम आप उसको रोको तो सही। आप उसको रोक सकते हो, हर कोई रोक सकता है, सब रोक सकते हैं, लेकिन आप कोशिश तो करो एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए, दूसरों को देखें, अगर ज्यादती हो रही है बच्चों के आवाज लिए भी, उठाएं। हाँ आप अच्छा काम करेंगे, अल्लाह आपका साथ देगा, हिम्मत खुद ही आ जाती है, हिम्मत खुद ही आ जाती है, काफिला खुद ही बन जाता है। बस एक सही स्टेप लेना है, सही फैसला लेना है, क्योंकि इन द एंड वी हैव टू फेस गॉड, एंड व्हेन ही विल क्वेश्चन अस व्हाट वी विल से, यू नो। So in the end, thank you so much, Faria. Such a provoking and such a eye-opening session, I think. और उसके लिए I hope you are feeling okay, because I know I am not feeling okay. I had this flask of water with me so that I could keep myself sane, but I'm shaken. I'm shaken, and I आई just अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, बिकॉज सुबह मैं जो है इस चीज को बाकायदा फील कर चुकी हूँ और अब वो चीज दोबारा मुझे रिकॉल हो रही है कि मतलब इस तरह से जो पेन, वो जो सफरिंग होती है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो मैंने फील की है। इसीलिए हर सेशन के बाद मैं जब घर आती थी तो आई फील सो अनॉयड, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हुआ है और ये क्या हो रहा है, कि हम इस चीज को इस तरह से ठीक करेंगे। और ये जो आर्ट थेरेपी की टेक्निक्स है ये हेल्प करेंगी आपको, ये बिल्कुल हेल्प करेंगी, लेकिन and आपके thank you पेरेंट्स so की much सपोर्ट। फॉर दीज टेक्निक्स फरिया। आई थिंक ये बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इजी है, ये कोई कॉस्टली भी नहीं है, आपके घर में चीजें होंगी जिससे आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल आई थिंक तुमने बहुत अच्छी, आई थिंक ये दी है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि एंड प्लीज आप लोग ये मत समझें कि ये जो स्पेसिफिक आर्ट थेरेपीज दी गई हैं ये तभी करनी होंगी जब बच्चा सफर करेगा। आप उसको पहले ही इतनी स्ट्रैटेजीज, कोपिंग स्ट्रैटेजीज दें कि ये जो टेक्निक्स हैं ये बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प करेंगी, वो और अलर्ट होगा, वो और अवेयर होगा अपने इमोशंस को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने कॉन्फिडेंस थॉट्स को लेके। आएगा वो उसमें, आपको हाँ आगे कॉन्फिडेंस बताएगा जब आएगा, कुछ बुरा होगा, तो हो वो सकता है कि हिम्मत आपको, आएगी उसमें। या तो बच्चा जब तक उसके साथ गॉड फॉरबिड कभी कुछ गलत हो रहा हो, वो इतना अवेयर होगा या होगी कि वो आगे खुद ही कन्वे कर पाएगी, ही और शी विल गेट द मीडियम टू एक्सप्रेस। सो ही और शी, इसलिए कि खाली ये उसके साथ ही होता है, मतलब ही के साथ भी ये बहुत होता है। हम खाली शी अक्सर ऐसा होता है कि हम करते रहते नहीं हैं नहीं, कि हर जो बच्चा, बिल्कुल लेकिन ये ही बिल्कुल के साथ भी ये बहुत होता है, तो वाह, बिल्कुल ही बिल्कुल होता है, लड़कों के साथ भी ये इसमें बहुत होता है। बिल्कुल लेकिन होता है। हम इस चीज को है ना इग्नोर करते हैं कि ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक ही नहीं होगा, आपको ठीक करना पड़ेगा उस चीज को। सही बात है। और ज़ैनब कह रही है कि मेंशन द टेक्निक्स, इस पे मैं बस ये बोलूंगी कि फरिया हाँ ने सारी टेक्निक्स का मुझे एक पीडीएफ दे दिया है, तो आई एम गोइंग टू अपलोड इट विद द वीडियो।
तो उसके साथ यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन यूज इट। तो उसने बहुत अच्छे से बना दिया है। तो थैंक यू सो मच फरिया, यू आर ऑलवेज अ स्टार। और थैंक यू। तुमने जो अपने आप को जैसे बनाया है और तुम जो दूसरों को बना रही हो, आई सल्यूट यू थैंक यू। एंड आई रियली एडमायर यू द वे यू आर, नेवर चेंज, कीप इट अप। तुम्हें 10 लोग बोले थैंक यू। कि तुम गलत कर रही हो, उनमें से एक मैं हूँ जो बोल रही हूँ लेकिन मैं करती फिर हो, भी अभी भी वो काम हो रहा है मेरा, देखो तुम्हारे करती सामने वो हो, काम हो रहा नेवर है, मैंने स्टॉप। छोड़ा नहीं है, मैंने छोड़ा बिल्कुल, नहीं है और कीप ना दैट मैं अप। कभी आई थिंक छोड़ूंगी। यही वो स्पिरिट है जो आई थिंक शायद हमारे बच्चों को थोड़ा हेल्प कर पाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह। इन द फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच फरिया फॉर गिविंग सो मच टाइम थैंक यू तुपा एंड फॉर हैविंग मी, थैंक यू। थैंक यू यार। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। So guys, that was Faria, my panelist, and I think अभी मेरे पास कुछ कहने को नहीं है बिकॉज मैं हिली नहीं हूँ। मैं एकदम आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पेन फील कर पा रही हूँ उन बच्चों का जो, और अभी हमारे कैन यू जस्ट इमेजिन कि जितनी देर हम लोग ने बात की है इस वक्त 6 बच्चों के साथ हो चुका होगा। कैन यू जस्ट इमेजिन कि हम लोग एक ऐसी रियलिटी के साथ सुकून से सो रहे हैं, क्योंकि वो हमारा बच्चा नहीं है। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। जब हम लोग एक सुकून से रात को सो के उठते हैं, उस रात में कितने बच्चों के साथ हो चुका होता है। तो प्लीज हमारी मेहनत, हमारी इस चीज को आगे लेके जाएं, इसको स्प्रेड करें, लोगों से बात करें, लोगों को बताएं। जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल हो तभी आपकी बात सुनी जाएगी। आप इस बारे में पढ़ें, हमने जितने सेशंस किए हैं उसको मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है, उसको स्प्रेड करें, सुने, रिसर्च करें। कोई बात समझ ना आए आप हमसे बात करें, हम आपको कनेक्ट कर देंगे विद द पीपल, सो दैट आपको ज्यादा इन डेप्थ हो। अगर इस दौरान अगर कोई हमने ऐसी बात की हो जो आपको ऑफेंसिव लगी हो, कोई ऐसी बात की हो जो आपको लगा हो कि बहुत बुरी थी, आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट। आई एम सेइंग इट आउट लाउड, आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट। क्योंकि अगर आपको ये सब बातें ऑफेंसिव लगी हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आपको ये सब बातें बुरी लग रही हैं, यू नीड टू सेव योर चिल्ड्रन बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग इन द राइट वे। ये सब अब्यूज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है और हम करते रहेंगे। जैसे फरिया ने कहा कि 10 लोग मना भी करते हैं तो भी हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें तो पता है वी नीड टू आंसर अल्लाह, एवरीवन नीड्स टू आंसर अल्लाह एंड एवरी सोल जिसके साथ कुछ हो रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हम लोग ह्यूमंस आई थिंक भूल गए हैं कि हमारा मेन रोल यही है। तो आई थिंक ऑन दैट नोट, क्योंकि अब आई थिंक अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। सो टेक केयर एंड आई विल रैप अप दिस टॉपिक। अब हम लोग नए टॉपिक पे जाएंगे, बट दिस वाज विद द चाइल्ड अब्यूज एंड मैल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इमोशनली एंड फिजिकली। सो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज डू अप्रोच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।